Hello students, welcome back to my channel Easy Maths with Ruxar. Now today we are going to start class 10 Thales theorem. Okay, so what is the Thales theorem? First of all, the statement of the Thales theorem, it is basically applies on the triangle if a line is drawn parallel. ठीक है, कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल किसमें, किसी एक ट्राइंगल में. सपोज दैट एक ट्राइंगल है ए बी सी. In the triangle, one parallel line is drawn. So, which line is parallel? EF, suppose that I am mentioning here, DE is parallel to BC. To intersect the other two sides in distinct point. Distinct means होता है different point. This parallel line will intersect at two different points. That one is a point D and point E. Are divided in the same ratio, that is AD upon DB is equal to AE upon EC. This we have to prove it. Okay, that means the theorem statement again I am telling you, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, किसी triangle में एक parallel line को draw करेंगे, वो ट्राइंगल की दोनों साइड पे दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एंड वो थर्ड साइड के पैरेलल है एंड दिस लाइन इज डिवाइडेड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन टू साइड्स, दैट इज AD upon DB is equal to AE upon EC. That we have to prove it. So in the given part, triangle ABC where DE is parallel to BC, that is a given statement. To prove AD upon DB, AE upon EC. So we have to do the construction. So what we do the construction? We have to join D2 on the side AE. If we draw the perpendicular side from the D vertex on the side AC, that is M, we can say that DM is perpendicular on AC. DM किसके ऊपर perpendicular है? AC पे perpendicular है. Again we have to construct EN. एक EN perpendicular draw कर लेंगे. वो किस साइड के ऊपर perpendicular है? AB पे है. Here we have mentioned EN is perpendicular on the side AB. After that, in a triangle when the perpendicular line is drawn, so we have to apply the formula half into base into height. So triangle कौन सा हमने लिया? ADE. ADE. ADE में AD आपका बेस हो गया, EN आपका क्या हो गया? साइड हो गया. ठीक है, that is AD base, EN height. After that, in triangle, in the same way, on the same base AD, अगर AD ही हम सेम बेस रखें तो इस पे ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है? BDE. We have to join these B to E vertex and D to C vertex. So triangle BDE is equal to half into base into height. Base will BD here. ठीक है, यही आपका बेस है. AB में एक AD बेस हमने लिया था, यहाँ पे हम DB बेस ले रहे हैं. ठीक है, DB बेस परपेंडिकुलर कौन सी लाइन जा रही है इस बेस के ऊपर? EN ही परपेंडिकुलर है वापस से. सो वी हैव टू मेंशन द साइड्स ऑफ BD triangle. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देन आफ्टर वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल. वी आर गेटिंग AD अपॉन DB. आफ्टर दैट अगेन वी हैव टू मूव इन ट्राइंगल ADE. वापस से हम ट्राइंगल ADE लेंगे और वहाँ पे हमारी हाइट जो होगी परपेंडिकुलर होगी DM. ठीक है, बेस हमारी AE हो जाएगी और DM हमारी हाइट हो जाएगी. इन द सेम वे वी हैव टू construct a triangle DEC. So we have to find the area of triangle DEC, half into side EC और हाइट आपकी इस EC मतलब इस साइड के ऊपर हाइट कौन सी है? DM है, तो DM हाइट हो गई. ठीक है, अगेन वी हैव टू सेम प्रोसेस. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू डू द divide equation third and fourth. Here I am mentioning here divide equation third and fourth.
So what we are getting from third and fourth, ADE and ट्राइंगल DEC को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, वी आर गेटिंग AE अपॉन EC. सो फ्रॉम A पार्ट वी आर गेटिंग AD अपॉन DB एंड फ्रॉम B part we are getting AE upon EC. After that, one theorem is in the class 9 chapter, area on the triangle on the same base. अगर कोई ट्राइंगल किसी सेम बेस पे बना होता है, सेम पैरेलल लाइन पे बना होता है, तो उनकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है. कैसे, देखिए ट्राइंगल BDE, BDE का बेस क्या है आपका, BC है, ठीक है. अगेन ट्राइंगल DEC, DEC में आपका बेस क्या है, आपका बेस क्या है, D आ रहा है, सॉरी BC की जगह D आ रहा है, दोनों में D साइड आ रही है बेस, ठीक है. तो जब कभी भी किसी ट्राइंगल को एक ही बेस पे बनाया जाता है तो उनकी एरिया इक्वल होती है. दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग द थ्योरम. एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस. कौन से बेस पे, D बेस पे. एंड उनके बीच में दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन BC है और दूसरी पैरेलल लाइन DE है. देख लीजिए आप लोग, एक पैरेलल लाइन BC है और दूसरी पैरेलल लाइन DE है. दोनों में बेस क्या है, D बेस आ रहा है जो कि कॉमन बेस है. सो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. आफ्टर दैट वी कैन से दैट फ्रॉम दिस पार्ट ADE upon BDE we are getting, here we are getting ADE upon DEC. तो we can say that कि both the part BDE और DEC दोनों की एरिया इक्वल हो जाएगी. कैसे इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल DE बेस पे बना हुआ है और BC और DE सेम पैरेलल लाइन है, ठीक है. सो वी आर राइटिंग हियर, जब BDE DEC के बराबर हो गया तो हम दोनों इक्वेशन को क्या हम एक दूसरे से रिमूव कर सकते हैं. BDE की जगह पे DEC लिख दें या DEC की जगह BDE लिख दें. तो वी आर गेटिंग ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन DEC. सो दिस वन इज कैंसल, डिनोमिनेटर इज सेम. सो न्यूमरेटर तो सेम है ही है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया. तो बचा क्या, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC. ओके, LHS दोनों इक्वेशन का A और B का सेम है. RHS वी हैव टू राइटिंग इक्वल. ओके, इफ यू आर understood this part of this theorem of class 10, so please like and subscribe my channel. Thank you.